ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ IAS IPS CA ਦੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। Basic concept is that what I live in Faridabad. The Haryana government has started a project, Super 40 Civil Servants, just to increase the percentage of civil servant cracking more than from Haryana. So I am one of the member in that, right? So what happened? Ki I am not talking fake. These are the data. The data ki kehte hai? I just give you an answer. हिंदी मीडियम के नाल UPSC क्रैक करने वाले सब तो ज्यादा बच्चे इस साल हुए हैं 52 आउट ऑफ 950। आउट ऑफ 950 सिर्फ 52 बच्चों ने हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो क्रैक किए है। और सवाल आता है साढ़े वर्गे बंद वास्ते, साड़ी एक उम्र हुई है, ठीक है ना, आई एम अराउंड 63+। असी अपनी एनर्जी उस थां लानी हैगी है जिथे सानू सक्सेस मिले। गौरमेंट पॉइंट एकदम सही है। तो कहने का भाव की हैगा कि जब सानू पता हैगा कि 950 बच्चों के विच 900 बंदे जिहड़े हैगे आ वो इंग्लिश मीडियम वाले हैगे, तो व्हाई आई विल वेस्ट माय एनर्जी दैट दिस इज इंडिविजुअल विद मी ओनली। आई मे बी रॉन्ग, ओके, मैं गलत हो सकता हूँ। तुहाडा जवाब यही मैं दे रहा हां कि तुसीं एक सवाल पूछा हैगा कि जिहड़े बच्चों की परसेंटेज घट आ, जिन्हां दी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहने का भाव यही है ना, है कि नहीं? इकोनॉमिक कंडीशन खराब से भाई मेरी गल सुन ला, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਪਤੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। if you have that sort of guts, that sort of intelligence, that sort of sincerity, right, we are not going to look for the financial things. We are least bothered. Our aim is that, मैं सर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, our aim is that ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। और सिख बच्चे करोड़पति का भी हो सकता है, सिख बच्चा करोड़पति का भी हो सकता है। यू गॉट माय पॉइंट। बट डेफिनेटली जब सानू पता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले क्रैक कर रहे 900, तो व्हाई वी शुड वेस्ट आवर एनर्जी जिसे सानू रिजल्ट नहीं मिलते। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस करके कहने का भाव की हैगा। हाँ, हुण मैं तुहानू गल होर दसदा सर, आपसे भी कह रहा हूं व्हेन दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड एट हरियाणा, मेरे को घट तो 1,500-2,000 लड़कियां ने सानू कहा कि भाई सानू दे आर ऑल फ्रॉम द हिंदी मीडियम है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है और 52 बंदे हो रहे हैं। उसका वजह की है? व्हाट इज द रूट कॉज व्हाई हिंदी मीडियम पीपल कांट क्रैक UPSC? उसकी वजह यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अप टू दैट मार्क। पहला साल हैगा कि विजन ते बाजीराम ने हिंदी मीडियम भी चालू किया, क्योंकि ना तो किताबा है, आज तक कोई न्यूज़पेपर चंगा नहीं है, अंग्रेजी च हिंदू हैगा वा, ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्चुअली गुड पेपर्स हिंदी मीडियम दे विच कोई चंगा पेपर ही नहीं है जिहड़ा कि UPSC के बच्चों को सपोर्ट करे। व्हाट टू डू? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैगा ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से टाइम लगेगा। इट विल टेक अनदर 10 years। तो फिर हो सकता है कि 950 बच्चा रहे 400 बच्चा हिंदी मीडियम का भी हो। देयर आर सो मेनी कोचिंग सेंटर्स है जो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ CSET ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ UP ਬਿਹਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ CSET ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਸ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। उन्होंने ऑपोजिशन की थी कि भाई नहीं, साढ़े बच्चे नहीं क्रैक कर पा रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट अप टू दैट लेवल। सो व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने फिर CSET क्वालिफाई कर
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਮਾਰਕਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ। UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਫੈਕਲਟੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ 50 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ UPSC ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਰਟਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੇਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਮੀਰ ਆ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਦਾਦੂ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਨਿਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ दैट। approximately आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। approximately there is expenditure of 3 लाख, okay। 3 लाख ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। we have tried to get you the best faculty in front of you. We believe in the best because we want result. We are result oriented. ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆਲ ਸਟੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ somebody that doesn't want to be a civil servant, you want to be a person from the accountancy, we'll bring them। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਡਮ will also tell you what is the minimum package one will get after complete। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ I never recommended to become a chartered accountant। I never recommend, क्योंकि बहुत मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट ने सोच लिया कि 100 बच्चा ही बढ़ाना, ठीक है ना। वो कह रहे 7 लाख बच्चा जो है पाइपलाइन से आएगा 7.5 लाख 7.5 लाख है। तुसी नवे जुड़ोगे आके तुसी कितने करोगे? You don't stand anywhere। So the best way is why I am telling you, and I have mentally prepared, right? Rather than promoting the guys through them as a chartered accountant, we should go for it। That's all। जिससे सानू एक job मिल जावे पढ़ने के बाद, ठीक है ना। That's all। And the guys those who are planning for the civil services, that मुझे कह रहे हैं कि I'm planning for the civil services, most welcome, ठीक है ना। लेकिन UPSC ऐसा नहीं क्लियर होगा। ਉਹਦੇ ਚ UPSC क्लियर करने वास्ते खास करके एग्जाम माँ प्यो भी उतना ही पढ़ता है जितना बच्चा पढ़ता है। You have to take care of a child, ठीक है ना। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕਮਾਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਾਦੂ ਸਰ है ना, और माँ प्यो की तरह टीचर जड़े ने वो भी मौजूद हैं। सर आज आपकी जो बातें आपने की ना, मेरे को अपना स्कूल याद आ गया। वो टीचर भी ऐसे होते थे। मैंने एक बहुत बारीक पॉइंट इनकी नोट किया इनके बोलने में, मेरे को अपने टीचर याद आए आज कि वो जब पढ़ाते थे ना दे वर टू सीरियस। आपके किसी क्वेश्चन किसी क्वेरी को इतनी अच्छी तरह जवाब देंगे जैसे आज सर बोल रहे थे। लेकिन जब इन्होंने डिस्ट्रैक्शंस की बात की तो सर हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे कोहली सर, वो क्लास ऐसे चलती थी तो जो भी समझा रहे हैं वो, अगर उनकी आंख किसी स्टूडेंट की आंख से मिली और वो नई आंखें चार हुई तो उन्होंने कहना ये पड़ा मेरा चौक, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, हाथ ऐसे करो बेंच के ऊपर, रेस्ट ऑफ द पीरियड।
वो चाहे अब 20 मिनट रह गए या 30 मिनट रह गए, सारी पढ़ाई नहीं होगी उसके बाद। उनकी आंखों से ही इतना काम हो जाता था। जो सर ने आज बोला है ना, सख्त सख्त कुछ लगा हमें, हार्ड उन्होंने लैंग्वेज यूज की है। हमारे टाइम पे वो सिर्फ आंखों से ही काम हो जाता था, चाहे पेरेंट्स की है चाहे टीचर की है, बट दे वर टू जेन्युइन। ये चीज हमें टीचर के एंगल से समझनी चाहिए। जो हमारा प्यार सत्कार जो है टीचर के लिए, वो किस लेवल तक होना चाहिए, पेरेंट्स का किस लेवल पे होना। इसलिए नहीं कि उन्होंने पैदा किया और हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि इस दुनिया में हमें वो गाइड करने वाले बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल सोर्स है, पेरेंट्स एंड टीचर। एक बाद वाली बात जो है वो पहले कर लेता हूँ। जो एक हमारे इन्होंने बोला कि भाई गुड़गांव जाने की प्रॉब्लम। सर मेरे को लाल बहादुर शास्त्री जी का ऐसे हमने लिखा था अपने टाइम पे, वो याद आ गया। तैर के जाते थे, तैर के जाते। स्कूल नदी के पार था, है ना, तो जिनके पास पैसे थे वो अपना उसमें नाव पे बैठते थे, बोट पे बैठते थे, चले जाते थे। ही यूज्ड टू स्विम। अब आप सोचो इतनी एफर्ट भी होती थी। और जो पहले गुरुकुल होते थे तो वहाँ तो जाना ही पड़ता था चल चल के। हमने खुद पैदल और बाद में साइकिल पे, ये बैग्स कंधे पे, लोडो कैसल सर में पढ़ता था, रेडियो कॉलोनी मॉडल टाउन के पास हमारा घर था, तो साइकिल से जाते थे। बोर्ड सेक्रेटरीट लोडो कैसल जहाँ है। ये एफर्ट करना बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि भाई क्या होगा, इतनी हम कॉन्फिडेंट हमें भी होना चाहिए। आप यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, उनको बनाना चाहते हैं, तो इतना भी कॉन्फिडेंस बच्चे पे भी होना चाहिए कि ही विल डू द जॉब। एक लास्ट गल जी तुहाडे करनी है, वो गुरबाणी का एंगल, जिवें कमालजीत जी ने गल की तुहाडे नाल कि साडा किरदार जिहड़ा, एक पंक्ति असीं सारिआं ने बड़ी कॉमनली सुनी हुई है, विद्या विचारी तां परोपकारी। अदा मीनिंग असीं कई बार पढ़िया भी होना कितने, या कुछ समझ भी आता, बहुत औखा नहीं है ना। लेकिन एदा अगर थोड़ा जा असीं डेप्थ च इहनूं टच करने की कोशिश करिए। विद्या असीं सब जानते हैं कि उहनूं कहंदे हां, जो दुनिया भर की जानकारी किसी भी फील्ड की असी पूरी लाइफ में लैंदे रहंदे हैं, दैट इज विद्या, है ना, एजुकेशन। विचारी, विचारी मतलब हैगा कि मेरे मंथन अंदर होया कि नहीं होया होगा, मैं उन्होंने प्रोसैस किया कि नहीं किया। देखो जिन्नियां ज्ञान इंद्रियां ना, ये तो असी दुनिया भर का ज्ञान ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर साडे अंतःकरण विच, जिन्हों असी अपना मन कहते हैं, कोई ऑर्गन नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है। सर ने अट्रैक्शन की बात की, आजकल जो अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो क्रिएट करती है। मान लो मैंने कुछ ऐसा देखा, अंदर मंथन हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, दैट कुड बी नेगेटिव एंड दैट कुड बी पॉजिटिव आल्सो। अगर तो वो प्रोसेसिंग होके मेरे मन के ऊपर नेगेटिविटी ने धावा बोल दिया, डोमिनेट कर लिया, सो आई विल डू समथिंग विच इज़ नॉट फ्रूटफुल, विच इज़ हर्टिंग। सोसाइटी में भी वो बदफैली फैलाएगी, मेरे अंदर भी और बाहर भी। अगर मंथन होके हुआ कि यस ठीक है, अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है, कोई सुंदरता देख ली, कोई अच्छा किसी का बोल चाल देख ली, अच्छा लगता है, उसको अप्रिशिएट करना और ये सोचना कि ऐसा मेरे को भी बनना चाहिए, मेरे बोल भी ऐसे होने चाहिए, मेरे को भी साफ सुथरा होकर रहना चाहिए। सो दैट इज पॉजिटिविटी। इस मन को जो है, विचारी का मतलब है कि मेरे ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, मेरा मन, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ये इतना पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए कि जो आउटकम आए मेरे स्वभाव के अंदर या प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में, दैट शुड बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी। विद्या विचारी तां परोपकारी। यहाँ तां जो है लफज, ये इसका जो मीनिंग हम देंगे, ताहियों, तां ही, जेकर उस विद्या, उस विचार करने के बाद अंदर से परोपकार की भावना, मतलब किसी के प्रति हम कुछ कर सकें, अगर वो वाली भावना अंदर से पैदा हुई है, फिर विद्या आपने विचार ली। तो जैसे भी सर ने भी लस्ट और ये रिश्वत वगैरह की जो बात की थी, अगर परोपकार की भावना है तो ये सब चीज़ अपने आप आउट हो जाएगी। आप किसी भी दुनिया के ओहदे पर होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो तो चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा ये परोपकार की भावना से इसमें अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे।
सो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सर का, मैडम का